and also share the videos with others. Let's start our video. So actually a topic has been taken on priority because many of the students have sent email and requested to make a video on the topic sentences, types of sentences in English. So let's learn online. The next topic, English sentences. In your point of view, what is sentence? Many of the books has been given a different definition, but a common one is that a group of words which gives a complete sense, which gives a meaning, is said to be the sentence, to be a sentence. So it's also clear, it's so simple, and हर किसी को ये explanation, ये definition clear है. Let's move. Sentence has two parts. Number one is the subject, another one is the predicate. Subject and predicate. This is the subject, this is the predicate. Subject हमने पिछली videos में भी cover किया था. Subject are maybe a noun, maybe a pronoun. Subject are said to be the doer of an action, the one who performs the action. Who perform the action are said to be the subject. Okay, Ji. Let's move. A subject is something or someone that does something. A simple definition जो हमने अपनी पहली videos में भी की है, subject is a doer of an action. Okay, I'm going to repeat this. A doer of an action is called subject. So here, look, the word is Ahmed. Ahmed studied the lesson. Is the doer of an action. The girl is eating an apple. The girl is the subject. The cat chased the rat. It's a doer of an action. तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि सब्जेक्ट क्या है. Now another thing, something or someone that the sentence describes are renames, जिसके जो further sentence को describe करता है, that is said to be the predicate. अब आप देखें ये मैंने yellow highlight किया हुआ है. Here the yellow highlighted ones are predicate. After the subject, the rest of the part of the sentence is said to be a predicate. Hassan is a good doctor. Is a good doctor. Hassan is a subject. Is a doctor. Is a doctor. ये जो पूरा है ना आपका ये हो जाएगा predicate. Okay. Here again, is a clever student. Is a predicate. Is very expensive. Is a predicate. यहाँ तक आपको clear हुआ होगा that subject is the doer of an action and predicate is someone that the sentence describes or renames. Let's move. Okay, Ji. The predicate is the part of the sentence other than the subject. It must contain a verb. यहाँ आपको स्लाइड में बहुत क्लियर हुआ होगा. A thief stole the car. His brother is a teacher. The rain has been fallen steadily. Ahmed will be coming soon. The train left 5 minutes ago. Now, जो ये white portion है, these are the subject are said to be the doer of an action. और जो yellow portion है, the rest of the part of the sentence is said to be the predicate. Now, sentence patterns according to the grammars क्या होते हैं? So let's see the again sentence patterns. This video has been made in detail ताकि आपको sentence के part details of the sentence with the patterns आपको clear हो जाए. So let's see the sentence pattern. Subject verb. Actually, someone or something. The subject does something. ये explanation which I have already made you clear. जो sentence है वो basically subject verb से भी बन सकता है. Now
Ali slept. We will be waiting. The train has left. The sun is disappearing. The glass is broken. These are the subject. Now, this is said to be the subject, the white part, and the yellow part are said to be the predicate. Here, a verb. Okay. So, यहाँ तक आपको clear हुआ होगा. These are the verbs and these are the subjects. Let's move. G. Another thing which has been added with the sentence. हमने sentence की start की definition में we have made one thing clear. A sentence is a group of words which gives a complete meaning. Ahmed at, it gives a meaning, but अगर at को और describe किया जाए तो at an apple आ जाएगा. ठीक है. तो ये explanation I have already given in the passive voice, active voice and tenses also. वहाँ पे भी I made it clear you all के subject, verb, object क्या होते हैं. Now the sentence अगर आप इधर देखें, this one, the subject, verb and object को, ठीक. So subject is the doer of an action, verb is an action, object act upon it. Ahmed ate an apple. Ali studied the lesson. A thief stole the car. Dr. Hamid has finished her book. And the last sentence is she wrote a poem. Okay. So now the star ones are the subject, the tick ones are the verbs, and the last tick red ones are the objects. Okay. यहाँ तक आपको hopefully clear हुआ होगा कि what are the subject, what are the verb. Verbs are already clear. The action are said to be the verb, and object we have made clear also. यहाँ आते subject, verb, object पे. Now let's see one important thing here. When the verb takes two objects, the first object is called the indirect object, जिसको मैंने I से refer किया हुआ है, and the second is called as a direct object. Okay, जहाँ पे मैंने D लिखा हुआ है. Look here, object for D, object for I, object indirect, object direct. Now Kamal gave his sister a gift. My uncle sent me a letter. The teacher asked him a question. अब आप देखें, ये तो क्लियर है कि these are the subjects. Okay, these are the verbs. ये भी क्लियर है. Now here comes two objects. यहाँ पे आपके two objects आते हैं. ठीक है, two objects आते हैं तो हम सबसे पहले indirect object लिखेंगे. Gave his father a gift. अगर हम simple लिखें, Kamel gave a gift, तो ये a gift is a direct object. ठीक है, तो ऊपर देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन में आपके लिख दिया है. सबसे पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. So here the concept is clear. Two type of the objects, indirect object and direct object. Let's move to the next slide. G. Now in sentence that tell what someone or something is or looks like, the complement describe or renames the subject. Amir is my brother. Okay, this is our professor. अब आप ऊपर देखें, sentence tell what someone or something is looks like. This is a complement describe or rename the subject. Subject को ही describe करता है, subject को ही rename करता है, subject को ही complement करता है. वो भी objects होते हैं. Those objects actually the subject, verb and the complement. ठीक है, तो ये होते हैं complement जो describe करते हैं हमारे subject को, जो describe or
रीनेम करते हैं हमारे सब्जेक्ट को। अगर आप इधर चेक करें, वन थिंग आई मेक यू क्लियर हियर, तो यहाँ देखते हैं दिस वन, लिंक विद अमीर माय ब्रदर। अब ये कॉम्प्लीमेंट करता है, डिस्क्राइब करता है कि वो क्या है, मेरा भाई है, दिस इज आवर प्रोफेसर। अब ये कॉम्प्लीमेंट करता है सब्जेक्ट के साथ कि आखिर वो क्या है, वो प्रोफेसर है, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट करता है दीज बुक्स लुक न्यू के साथ, बुक्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कुछ सब्जेक्ट वर्ब जो है अपने साथ कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज एन एडिशन आर इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा होता है। जी, हमने सेंटेंस क्लियर किया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लियर किया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर किए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्लियर किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। Now please look at the screen carefully. An object or a complement. Now Muhammad is a doctor. Muhammad is a subject. Is a verb, helping verb. A doctor is a complement. It is also a object. Ali visited the doctor. Ali visited a doctor. अब देखिए, Ali visited a doctor. Ali is a subject, visited is a verb, and the doctor here is a object, direct object. वहां पे it's showing the profession, वो फर्दर आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, फर्दर आपके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट होता है, ये अ कॉम्प्लीमेंट होता है। बोथ कैन बी कंसिडर एज अ सिमिलर, के दोनों ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बट हम डिटेल में पढ़ रहे, तो we have studied and I'm going to explain it, a complement and an object. Complement, again मैं repeat कर देती हूँ, complement will describe the subject further, rename the further, and object आपका direct और indirect भी हो सकता है, ठीक। Now look at another one, that a subject verb object, फिर object complement आ जाता है आपका, ठीक है। A complement after the object describe or rename it. आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। एक डायरेक्ट आपका कंप्लीमेंट आ जाता है विद अ सब्जेक्ट, एक कंप्लीमेंट नाउ लेट्स सी विद एन ऑब्जेक्ट आ जाता है जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता होता है, ठीक है। नाउ द कंप्लीमेंट हियर डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट, वहां पे कंप्लीमेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा था, टू द सब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी, दे पेंटेड द हाउस व्हाइट। नाउ दे पेंटेड द हाउस, ये एक सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ। नाउ हियर द वॉइस इज sorry, here the void, here the void is these are the complement, object complement। ऊपर देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन आपकी सेट की हुई है इधर, सब्जेक्ट वर्ब, दिस इज वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये कंप्लीमेंट फॉर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा कि भाई जो हाउस है वो पेंट किस कलर में हुआ है, व्हाइट। She named her cat Lucy. हर केट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट। दीनिया कंसिडर्ड द बुक ग्रेट, द बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, दे इलेक्टेड हिम अ प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे हिम को डिस्क्राइब कर रहा है, हिम इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है, सॉरी इलेक्ट किया गया है। यहाँ तक चीजें आपकी होपफुली क्लियर हुई होंगी। लेट्स मूव। समरी ऑफ द सेंटेंस पैटर्न, हमने सब्जेक्ट वर्ब पढ़े थे, ठीक है, ये हमने क्लियर किए। सब्जेक्ट वर्ब विद ऑब्जेक्ट पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के हमने क्लियर किए हैं, ठीक है। ये डबल ऑब्जेक्ट मींस अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा है, जो कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्ट के साथ होगा। नाउ हियर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आपका कैसे होगा,
यहाँ तक हमने कवर कर लिया है सब्जेक्ट वर्ब. दिस इज एक्चुअली द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंटेंस. बहुत से स्टूडेंट्स ने स्पेशली कहा भी था कि आप सेंटेंस के ऊपर करें, वीडियो हमें क्लियर करें. तो आई थॉट कि एक ही वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के टाइप्स एंड सेंटेंस की डिस्क्रिप्शन को डिटेल में कवर कर लूं, सो दैट हमें दोबारा वीडियो इस पे ना बनानी पड़े और डिस्क्रिप्शन प्लस नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाए. लेट्स मूव. एक्सपेंडिंग सेंटेंसेस. अब ये तो हो गया सिंपल जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया. एक होता है एक्सपेंडिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस को एक्सपेंड करना, लार्ज करना. नाउ लेट्स सी. Sentences can be expanded to give more information by one of the following. ठीक है, वो सिंगल वर्ड्स में भी हो सकते हैं, वो फ्रेजेस में भी हो सकती है, वो कंबाइनिंग क्लासेस में भी हो सकते हैं. सो फ्रेज क्लास को या कोई सिंगल वर्ड ऐड करके सेंटेंस को एक्सपेंड किया जाता है. क्यों एक्सपेंड किया जाता है? टू गिव अ डिटेल इंफॉर्मेशन, टू गिव more information about the subject or about the action. Now let's see. एडिंग सिंगल वर्ड हमने 3 पीछे स्लाइड में किए थे. नॉलेज ये देखें, सिंगल वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस के साथ एंड कंबाइनिंग क्लास के साथ. तो मूविंग फर्स्ट इज एन एडिंग अ सिंगल वर्ड. द स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन. ओके, actually I have made this one for the online classes also. So coming toward the next one, the clever student answer the difficult question. The student answered the question. अब now the word clever and difficult has been added. जो single word है, ये देखें, clever and difficult, clever and difficult. Now एक और single word भी हमने यहाँ add किया है, that is quickly. Clever, again clever with extremely difficult and very quickly. ठीक है. अब देखिए, the student answered the question, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने उसको और इंफॉर्मेशन देने के लिए वी हैव एक्सपेंड अ सेंटेंस. द क्लेवर स्टूडेंट आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन. अगेन हमने एक और ऐड किया है, द क्लेवर स्टूडेंट आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन क्विकली. एक और वर्ड ऐड कर दिया है. yesterday the clever student answered the extremely difficult question very quickly. तो ये एक्सपेंड हो जाता है विद अ सिंगल वर्ड सेंटेंस के लिए. ठीक है. वैसे ग्रामर के हिसाब से इसकी पोजीशन डिफरेंट होती है, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से इसकी पोजीशन डिफरेंट होती है, बट हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हम सेंटेंस की एक्सपेंड करना किसे कहते हैं, सिंगल वर्ड से, वो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया है. लेट्स सी. एडिंग फ्रेज. सबसे पहले तो फ्रेज और क्लास होते क्या है आपको ये आना चाहिए. A phrase is a group of words that does not have a finite verb. ठीक है. और सिंपल फिलहाल आप इसको देख ले. वर्ब फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब के लिए हमने एक और अलग वीडियो बना रखी है. वी विल अपलोड इट इंशाल्लाह. So example of the phrase, in the morning the clever student on the table before dinner to me last week to tell him to study hard, being a citizen, being an honest citizen, arriving clearly. अच्छा, ये कुछ मैंने phrases रखे हैं. Once upon a time is also the phrase. Okay. In the evening at 11 o'clock, this is also the phrase. So the ones who does not have a finite verb, उसको हम phrase कहते हैं. ठीक. ये सेंटेंस में हम ऐड करें तो सेंटेंस जो है आपकी मोर इंफॉर्मेशन देता है, एक्सपेंड हो जाता है. लेट्स सी कैसे देता है मोर इंफॉर्मेशन. स्पेंडिंग sentences by phrase. My friend arrives, simple sentence है. ठीक है. My best friend arrives tomorrow, single word से हो गया. ये हमने फर्स्ट में किया था सिंगल वर्ड ऐड करने से. अब हम कह रहे हैं कि फ्रेज ऐड करेंगे. To my surprise, this is also a phrase. My best friend from Jeddah arrives tomorrow. Again a phrase, at the airport at 7 o'clock. Now
सिंगल वर्ड एंड फ्रेज, दीज आर द फ्रेजेस। अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ अलग से बयान करें, टू माई सरप्राइज इज द फ्रेज, फ्रॉम जद्दा इज द फ्रेज, एट द एयरपोर्ट इज द फ्रेज, हमने पिछली स्लाइड में ये भी क्लियर किया था, एट 7 o'clock इज ऑल्सो द फ्रेज। लेट्स मूव थर्ड पॉइंट कि क्लास के साथ कैसे बनता है। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज और क्लास में यही फर्क है। Phrase cannot contain the verb. A class contains a verb. Example: the bus arrived. The teacher asked me a question. The car is great. She's working hard. अब आप देखिए, the bus arrived. The teacher asked me a question. The car is great. She's working hard. आगे हम ये लगा दे अगर, ठीक है, with verb these one, मैं आपको हाईलाइट करके करवा देती हूँ। चलें जी, these ones if will be added with the following sentences, तो आपके वो क्लास बन जाए, because he succeeded. Okay, when Ahmed saw me after they left the store, okay, the thief arrived after they left the store. Since the computer is not working, okay, so these are, अब आप देखिए ये सारे क्लास हैं. Why these are said to be the class? Because they contain the verb. यहाँ succeeded verb है, saw verb है, left verb है, working verb है, and यहाँ पे आपका helping verb और main verb दोनों मौजूद है. This is also a type of expanding a sentence. अब हमने expanding a sentence का review ले लेते हैं कि हमने expanding a sentence को कैसे describe किया है. जी, let's move. अब क्लास में भी जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट में किया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लास में भी सेम थिंग इस तरह से है कि इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास को हम जो है सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं. क्लास हमें क्लियर हो गया. द क्लास कंटेन्स द वर्ब, दे कैन स्टैंड अलोन. इंडिपेंडेंट क्लास में क्या होता है, जैसे कि वर्ड आपको डिस्क्राइब करता है. मैं अपनी हर लेक्चर में आपको यही बताती आती हूँ कि भाई आप टॉपिक से उसका आइडिया ले सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं. तो इंडिपेंडेंट क्लास, द वन हु कैन स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस. द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, सारा इज ड्राइंग अ पिक्चर, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन. ठीक है, इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं. ये जो है इंडिपेंडेंट आपके क्लॉज है. द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, इटसेल्फ गिव्स एन एक्सप्लेनेशन. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? They cannot stand alone in the sentence because they start with a certain words called subordinate words. When they told me, उन्होंने कब बताया? ठीक है, although she knows, but she does not reveal the secret. While he was doing her homework, he slept. अब आप देखिए, ये मीनिंग तो दे रहे हैं बट दे डू नॉट गिव द कंप्लीट मीनिंग. ये डिपेंडेंट है. व्हेन दे टोल्ड मी, अगर हम वैसे देखें तो इट विल जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ सेंटेंस, जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, लेकिन इनका खुद से कोई वजूद नहीं है. दे आर द डिपेंडेंट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास. इसके साथ हम अगर दूसरा क्लास लगाएंगे और द सेंटेंस लगाएंगे, देन द मीनिंग विल बी क्लियर. ओके जी. सम सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स जो आपके आइडेंटिफाई करेंगे. कैसे आपको पता चले कि भाई दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लास? तो ये वर्ड लिस्ट है जिससे आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि भाई ये सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास है कि नहीं. आप नीचे देखिए, व्हेन, ऑल्दो, व्हाइल, जिससे आपको पता चला ये सबऑर्डिनेट क्लास है. ठीक, दिस इज अ लिस्ट. ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, why, where, since, if, unless, which, that, who, whom, whose. So go through the list, it will make your concept clear. Expanding sentences by dependent clause और independent clause के जरिए तो itself meaning clear हो जाती है, लेकिन dependent clause ऐड करने से आपका sentence expand हो जाता है. Basically हमारा टॉपिक था how to expand this sentence. अब देखिए, my friend arrives tomorrow. अब एक्सपेंड किया है हमने. अब देखिए, मैंने आपको कहा था कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे हु, यहाँ पे तो हु, दैट, बिकॉज को ऐड किया गया है.
वैसे ग्रामर में ये कंजक्शंस भी हैं, कुछ आपके प्रोनाउंस भी हैं. My friend who lives in Kiaro arrives tomorrow. Who lives in Kiaro is a subordinate class. इसका खुद से कोई मतलब नहीं है. अगर मैं लिखूं he lives in the Kiaro तो आपका ये इंडिपेंडेंट क्लास बन सकता है. The student answered the question. The student who is sitting beside the window answered the question. Now who is sitting beside the window is a subordinate class. इसको हमने सेंटेंस को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल किया है. Student who is sitting beside the window answer the question that the teacher asked. यहाँ पे दो subordinate class को हमने इस्तेमाल किया हुआ है to make to give more information about the subject. So she succeeded. ये तो आपका independent class है. She succeeded because she studied hard. अगर मैं लिखूं because she studied hard तो इसका मतलब कि कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है आपकी. दिस इज सेड टू बी अ सबऑर्डिनेट क्लास. इसको हमने सेंटेंस में ऐड किया है जस्ट टू एक्सपेंड इट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे. आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू क्लियर इन अ वेरी सिंपल वे एंड होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड also subscribe our channel ताकि हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी और clear in a simple language videos ला सके. And if you like our channel तो please share with others also. Now there are the four main sentences type: simple sentences, compound sentences, complex sentences and compound and complex sentences. Compound and complex को merge करके किया. One by one we will discuss it. The simple sentence, only one independent clause. ठीक है, जिसमें कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं लगेगा वो सिंपल होगा. देखिए, the meeting started, वैसे ये क्लास भी है. This is also independent clause. Laila likes reading. Salwa ate her lunch. My uncle sent me a letter. जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो या सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब भी हो तो भी आपके सिंपल सेंटेंसेस हो जाते हैं. The compound sentences, two or more independent clause. अब देखिए, independent clause के लिए मैंने कुछ words आपको दिखाए थे कि वो word इस्तेमाल होते हैं आपके independent clause में. जब वो इस्तेमाल हो जाए आपके तो sentence will be in the form of the compound sentences. Let's see. There are three ways to join the independent clause to make a compound sentence. Sentence को compound बनाने के लिए तीन तरीके हैं. तो कौन से तीन तरीके हैं? नंबर वन, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड अ कॉमा. दो चीजें इस्तेमाल होती है. ठीक है, या तो कोऑर्डिनेटिंग विद अ कंजक्शन, कंजक्शन इफ एंड सो बट, ये सब आपके कंजक्शंस हैं, उसके जरिए, या फिर आप कॉमा के जरिए सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. नाउ लुक एट हियर. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर 7. कौन से होते हैं? ये देखिए आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. एंड, बट, येट, फॉर, और, नॉर, सो. फैन, वॉइस. अच्छा जी, इसको चेक करते हैं आप एग्जांपल के जरिए. फातिमा बोरोड अ नॉवेल एंड सलमा टुक अ हिस्ट्री बुक. ये जो एंड है ना आपका, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, इसके लगाने से दूसरा सेंटेंस, ये पूरा मुकम्मल आपका जो सेंटेंस बन गया वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया. दिस इज अ सिंगल सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस थ्रू अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, यहाँ पे सेकंड वन को चेक कर लेते हैं. अगेन, अमीन लाइक्स वीक फूड बट हिज सिस्टर प्रेफर्स चाइनीज फूड. नाउ यार देखिए, ये बट की वजह से दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, but compound sentence joining through a conjunction. Nasir like English, so he joined the English department. Our English classes, our online English classes, are subscribed the online English channels. So he joined the English department. Clear? अब हम सेकंड पे, मैंने आपको बताया था तीन तरीके हैं. ठीक, हमने पिछली स्लाइड में ये भी क्लियर किया था कि तीन तरीके हैं आपके कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए. Now let's see the second one.
आपका सेकंड वन है अ सेमीकोलन, अ कंजक्टिव एडवर्ब। सेमीकोलन आपको पता होगा, सेमीकोलन किसको कहते हैं, ठीक है, मैं इधर आपको बता देती हूँ। ये होता है कॉलन जो डबल डॉट के, ये होता है आपका सेमीकोलन, एक डॉट एक छोटा कॉमा आ जाता है, इट इज सेड टू बी द सेमीकोलन। Okay, so these are said to be the colon and semicolon. Some conjunctive adverbs. Therefore, furthermore, moreover, otherwise, however, nevertheless, meanwhile, beside, consequently, and still. Example: Indian food is a delicious, however, it is too spicy. Okay. So he likes biology. Therefore, he decided to join the faculty of medicine. ये however और therefore these are the conjunctive adverbs. इनको ज्वाइन करने से भी आपके कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक। अ सेमीकोलन, अ कंजक्टिव एडवर्ब, या साथ सेमीकोलन लगता है आपका, ये देखें आप, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कर देती हूँ आपको, ये देखें, दिस वन इज अ सेमीकोलन, दिस वन इज अ सेमीकोलन, ठीक। therefore के बाद फिर कॉमा, इट इज टू स्पाइसी, आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। So let's move to the third one. थर्ड वन आपका सिर्फ और सिर्फ सेमीकोलन लगाने से भी आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। आई हैड ऑलरेडी मेड यू क्लियर कि ये सेमीकोलन की साइन होती है, ठीक है। ऑल द टाइपराइटर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, कंप्यूटर्स वर पुट इन देयर प्लेसेस। अब देखिए इधर बट या सो का कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, दिस इज ऑल्सो द कंपाउंड सेंटेंस। आप कैसे पहचान सकते हैं, जब आप उसमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो सेमीकोलन must be used in the sentence to identify the compound sentences. The old villa was demolished, semicolon, a hotel replaced it. उसको रिप्लेस करके होटल बनाया गया था, ठीक है। Move to the next. The complex sentence. One independent clause and at least one subordinate clause. हमने 4 टाइप सेंटेंस के क्लियर किए थे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को साथ पढ़ेंगे। क्लॉज, अ कंटेन वन इंडिपेंडेंट, वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों किस्म के क्लॉज कंटेन करेगा एटलीस्ट, तो आपका वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है? he succeeded because he studied hard, ठीक। he succeeded is an independent clause, इसका खुद भी मतलब निकलता है, because he studied hard, तो आपका subordinate clause बन गया, तो ये आपका क्या हो गया? complex. I remembered her sister when I saw her, ये आपका complex हो गया। although he tried very hard, he did not finish in time, अब आपका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मस्ट कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लास, वन सबऑर्डिनेट क्लास, okay? While Sarah borrowed a science book, her sister looked a history book. Before he left for school, Samir put all his books in his bag. ठीक, तो जस्ट आपने वन थिंग अपने जहन में रखनी है कि आज फ्रॉम द सेंटेंस कि वो अगर आप तोड़ के लिखेंगे ना तो इट विल क्लियरली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, इफ इट कंटेन्स बोथ। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, पहले सबऑर्डिनेट क्लास आ सकता है, फिर सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ सकता है, और नेक्स्ट आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ सकता है, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। Note on punctuation. If the sentence starts with the subordinate clause, a comma is needed. Because he studied hard, comma, he succeeded. When I meet his father, I told him. I must told him. If the sentence starts with independent clause, अब आप ऊपर देखिए, अगर आपका sentence subordinate से start होगा तो आपने punctuation comma जरूर डालनी है, ठीक है। ये errors भी आते हैं। If the sentence start with the independent clause, the comma is not necessary, is not required.
is not needed. He succeeded because he studied hard. अब आप देखिए सबसे पहले आपका आया है इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हमने यहाँ कॉमा नहीं लगाई, जबकि ऊपर दोनों में कॉमा लगी हुई। रीजन इज दैट सबसे पहले हमने सबऑर्डिनेट क्लास को उठा के रखा है। ठीक, समरी ऑफ सेंटेंसेस जो हमने टाइप्स पढ़ी थी। अब आप देखिए सिंपल सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने पढ़े सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक, होते ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कंटेंट सब्जेक्ट वर्ब एंड आल्सो द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की भी कैटेगरीज की है। कंपाउंड सेंटेंस एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसका अकेले कुछ वजूद ना हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला के कंपाउंड सेंटेंस किए थे हमने। कंप्लेक्स सेंटेंसेस 1 इंडिपेंडेंट क्लास प्लस एटलीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एक हो तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया जाता है। Now remember, any sentence must contain at least one independent clause. वरना आपका सेंटेंस ही नहीं होगा। जैसे सिंपल सेंटेंस में हमने किया था कि सिंपल सेंटेंस जो है आपके इंडिपेंडेंट क्लास ही होते हैं। ठीक, now let's see this one, that avoid sentence fragments, parts. ठीक है, a sentence fragment is a part of a sentence punctuated as if it were a complete sentence. Example, because he studied hard, ये fragment है, subordinate clause है। ठीक है, while I was waiting, fragment है, subordinate clause है। in the early morning, fragment है, phrase है। phrase क्यों है? क्योंकि इसमें verb नहीं है, ऊपर दोनों में verb है आपके, इसीलिए वो क्लॉज है। एज इन द पास्ट, फ्रेगमेंट है, आपके फ्रेजेस है। ये जो है पार्ट कंटेन करेंगे। अवॉइड सेंटेंस फ्रेगमेंट, मतलब आप इनको पार्ट में यूज करने से अवॉइड करें। ऑलवेज कैरी और कंप्लीट अ सेंटेंस विद अ कंपाउंड। इनको आप कंपाउंड बना के सेंटेंस की मोर इंफॉर्मेशन देकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक